हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे चल रहे हैं आपकी प्रिपरेशन? तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। अगर पिछला वाला वीडियो आपने देख लिया है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के, मोस्ट प्रोबेबली यस 26 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड वेरी 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 एनर्जेटिक वे, इन वेरी एनर्जेटिक वे। सो इस बार भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। પહેલા જ મેં કીધું કે વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ પ્રોબેબિલિટી બે પાર્ટમાં કરી રહ્યો છું, એક ફોર્મ્યુલા બેઝ, એના માટે તમને આખી પેટર્ન સમજાવી હતી, યાદ કરી લો એકવાર, ફરીથી વિડીયો જોઈ લો, ફરીથી ફોર્મ્યુલા તમે રિવાઇઝ કરી લો. ધેન સેકન્ડ પાર્ટ વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ, કે જેમાં મોસ્ટ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સને કન્ફ્યુઝન વધારે થાય છે. જે પહેલો પાર્ટ છે એ ઇઝી છે, કમ્પેરેટિવલી ઇઝી છે, અને ફોર્મ્યુલા મૂકો આન્સર આવી જ જાય છે, કોઈ બી સ્ટુડન્ટ્સ હોય એને પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. પણ જે હવે સેકન્ડ પાર્ટ છે એમાં કન્ફ્યુઝન વધારે હોય છે, કયો કન્સેપ્ટ ક્યાં લગાડવો શું છે, એટલે જ મેં ટોટલી ડિવાઈડ કર્યો. અને આ વિડીયો આવા ટાઈપના ક્વોન્ટિટી, આવી ટાઈપની ક્વોલિટી સાથે તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળે, એટલા માટે ખાસ લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી વિડીયોમાં બનાવી રહેજો, જોતા રહેજો, સોલ્વ કરતા રહેજો જોડે જોડે, બરાબર છે? અને બેસ્ટ MCQ સિરીઝ લઈને આવ્યો છું. યસ, આગળના બધા ચેપ્ટર્સ પણ તમને કરીને આવ્યો છું, એ જ રીતે હવે જઈ રહ્યો છું. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. 26 तक फॉर्मूला बेस थे, अभी नेक्स्ट जा रहे हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय 3% ABC रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट इफ दे आर फायर साइमल्टेनियसली. હવે એક કન્સેપ્ટ સમજો, આમાં કયો કન્સેપ્ટ લાગે? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, या तो फिर बेस थ्योरम. अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो लागશે જ નહીં, એવું ક્યાં છે કે એક ઇવેન્ટ થાય છે ને પછી બીજી ઇવેન્ટ થાય? કટ. અભી કંડીશનલ પ્રોબેબિલિટી નથી તો બેઝ ઇવેન્ટ પણ નથી, એકબીજાના જ ભાઈઓ છે ને. તો હવે મલ્ટિપ્લિકેશન થિયરમ છે, બટ આ શું છે મલ્ટિપ્લિકેશન થિયરમ? તો 3 persons આર ટાર્ગેટિંગ ધી, હિટિંગ ધી ટાર્ગેટ. સો હવે 3 પર્સન ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી જ કામ કરે. અરે ભરે લાઇનમાં ઊભા હોય 10 જણ, તમે શૂટિંગ સીન કોઈ જોયો હોય તો એક સાથે ભલે 10-15 જણા શૂટ આઉટ કરતા હોય, બટ કરે તો બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી. તો દેટ मीन्स કે A, B एंड C ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. बस, तो अभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो अगर मुझे इंटरसेक्शन करना है तो वो मल्टीप्लिकेशन आएगा. तो अभी क्वेश्चन क्या है? वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट. कोई एक बंदा ही हिट टारगेट करेगा, यानी कोई एक बंदे में या तो A वाला आएगा, या तो B वाला आएगा, या तो C वाला आएगा. હવે યાર, તો એક જ થોડી લખવાનો P of A પ્લસ P of B પ્લસ P of C, નહીં. જ્યારે એક જ બંદો થાય તો બીજા બે બંદા હિટિંગ પ્રોપરલી થઈ નહીં શકે. ડન? થાય જ નહીં ને, પોસિબલ જ નથી, કેમ કે તમે ઓનલી વન ઓફ ધેમ, ઓનલી વન એન્ડ ઓનલી વન ઓફ ધેમ. યસ, આ સમજવાનું આ જ છે. બસ, તો હવે A B C इंडिपेंडेंट है तो A डैश B डैश C डैश भी इंडिपेंडेंट ही हो गए इसके. ओके, तो ચાલો મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ P ઓફ A. હવે ધ્યાનથી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે બેટા. પહેલો જ ક્વેશ્ચન્સ એકદમ જોરદાર. હોપ યુ આર ડુઈંગ વેરી વેરી વેલ. મજા આવતી જશે તમને. ક્વેશ્ચન્સ જ એવા લાવ્યો છું. હવે આમાં કોઈ બધા કન્સેપ્ટ હું બધા જ લઈ લઉં છું, તમારા જે કંઈ MCQ સિરીઝ છે એમાં. પછી એમાં વેરાયટી ઓફ ક્વેશ્ચન્સ, ફિક્સ એન્ડ ફિગર્સ એન્ડ બધું ચેન્જ કરી શકે. ચલો, તો P ઓફ A 1/2, 1/3, 1/4. તો ડેશ પણ સાથે સાથે લઈ લો. 1/2 તો શું પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. 1/3નું 2/3, અને P ઓફ C ડેશ 1/4 का 3/4, 1 માઇનસ કરીને જવા દેવાનું. ચલો, તો 1/2 બે ડેશ 2/3, C डैश 3/4. एक पार्ट खत्म. चलो दूसरा B A डैश C डैश B B B B B एकदम शांतिથી લખવાનું, ઉતાવળ નથી. 1/3 यानी B. अभी A डैश एंड C डैश એટલે 1/2 एंड 3/4. કોણ ડેશમાં છે અને કોણ રેગ્યુલરમાં છે? C રેગ્યુલર में એટલે 1/4, અને ડેશ A यानी 1/2 एंड 2/3. एक काम करो, आने कोई सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट, बद्दा ना LCM नीचे सेम अच्छे, 2 3 6 4 24, यानी 24 सभी के नीचे आएंगे ही आएंगे. चलो ऊपर डिनोमिनेटर, सॉरी ऊपर न्यूमिनेटर 2 3 6 प्लस 3 प्लस 2, सो 5 प्लस 6 9/24. तो 3 सॉरी
6 + 3 9 + 2 11/24. सॉरी माई मिस्टेक. 5 + 6 11 आएगा यार. So 11/24 is the answer. Done? बस आ રીતે જાઓ. Easily you can solve. પહેલા જ કીધું વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરે છે. શું કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરે છે? વર્ડ્સ જ એના. A dice is thrown 3 times यानी 6 6 6 outcome. Succession यानी one after another. The probability that all the number throws shown same number on its top face. આ તો સિમ્પલ સમજે. all the same numbers on top face. तो same number तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 options and upon 2 1 6. तो 1/36 is the answer. સિમ્પલ 11th સ્ટાન્ડર્ડનો સમ છે. પણ વચ્ચે આવું નાખી દે તો આપણને કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ કે હા. A die is thrown twice यानी 36 outcomes. Yes, पहले तो वाँचीने तरत क्लियर हो जाए यार. 36 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एवी रीते. The numbers on both the dice is 6. Sum of the numbers both the dice is 6. चलो कौन कौन 6 करेगा भाई? 1 5 करेगा, 2 4 करेगा, 3 3 करेगा, 4 1 करेगा, सॉरी 4 2 करेगा और 5 1 करेगा. चलो વોટ ઇઝ ધ કન્ડિશનલ? આમાં તો આપી જ દીધું છે ભાઈ, પણ હું કહું કદાચ આ વર્ડ બી ના લખે તો પણ કન્ડિશનલ પ્રોબેबिलिटी છે. તો બેઝ ઇવેન્ટ हमारी क्या आ गई बेटा? ये वाली बेज इवेंट. પહેલા તો બેઝ ઇવેન્ટ પકડવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ બેઝ ઇવેન્ટના તમારા કોઓર્ડિનેટ્સ થઈ ગયા, એલિમેન્ટ્સ થઈ ગયા. તો બેઝ ઇવેન્ટ की प्रोबेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए. 1 2 3 4 5. सो 5/36. હવે ए इवेंट कौन है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? दिस इज योर ए इवेंट. सो नंबर 4 appeared at least 1. तो अभी મને એની પ્રોબેબિલિટીની જરૂરત નથી બેટા. એ પ્રોબેબિલિટીની કોઈ જરૂરત નથી, કેમ કે એની પ્રોબેબિલિટી ક્યાં ફાઇન્ડ કરવાની છે? એ બાર એ ઇન્ટરસેક્શન બી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ટેક્સ્ટબુક લેવલ સમ છે. તો આમાંથી 4 1 ટાઈમ્સ આવે એટલા કોણ છે? બે જ ઓપ્શન્સ છે. સો 2/36 5/36. આન્સર ઇઝ 2/5. ક્લિયર? કન્ડિશનલ પ્રોબેબિલિટી પહેલો સમ મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ, કન્ડિશનલ પ્રોબેબિલિટી, બેઝ થિયરમ. આ ત્રણમાં જ ગૂંચવાડો થવાનો છે તમારો. સારું છે રિડ્યુસ સિલેબસ છે તો ઘણું બધું કટ થઈ ગયું છે, બહુ બધું કન્ફ્યુઝન ઓછું થઈ ગયું છે, થોડુંક રાખ્યું છે. હવે એટલું તો હવે ચાલે ને યાર, પ્રોબેबिलिटी છે. हाँ, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम दो. थोड़ा लंबा देख के ऐसा लगना चाहिए कि बेस थ्योरम जैसा है. हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखते हैं. अ स्मॉल टाउन हैज़ 1 फायर इंजन एंड 1 एम्बुलेंस अवेलेबल फॉर इमरजेंसी. द प्रोबेबिलिटी दैट द फायर इंजन इज अवेलेबल इज नीडेड 0.99. कन्फर्मली बेस थ्योरम है. पढ़ लो. द प्रोबेबिलिटी दैट एम्बुलेंस इज अवेलेबल 0.92. द इवेंट ऑफ इंजुरी रिजल्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग ऑन फायर, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द एम्बुलेंस एंड फायर इंजन विल बी अवेलेबल. अरे नहीं, पहले तो देख के लग गया था बेस थ्योरम है. ये मेरी गलती भी आप कर सकते हो. બહુ મોટું લાગે એટલે બેસે નહીં, સિમ્પલ જ છે. ઇન ધ ઇવેન્ટ लिखा बहुत है, લખ્યું બહુ બધું છે, કામનું તો આ જ છે. બોથ એમ્બ્યુલન્સ એન્ડ અવેલેબલ. તો ये ए ઇવેન્ટ, ये बी ઇવેન્ટ તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી જ આવે ને ભાઈ. ફાયર અને એમ્બ્યુલન્સ એકબીજાથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જ વર્ક કરે ને. સિમ્પલ છે, લોજિકલી કોમન સેન્સનો ક્વેશ્ચન છે. કોઈ જગ્યાએ ફાયર આગ લાગી હોય તો ફાયર એન્જિન અને એમ્બ્યુલન્સ एक बीजा ऊपर डिपेंड ना हो कि भाई पेलो हाँ फायर वाला या राह देखते हैं कि भाई एम्बुलेंस वाला आया तब मैं जाऊँ, या एम्बुलेंस वाला राह देखेगा भाई फायर वाले को बुलाओ फिर मैं जाता हूँ. ऐसा नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे. इंडिपेंडेंट इवेंट्स ने તમારે એઝ એ કોમન સેન્સથી વિચારવાનું કે બંને અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ કામ કરી શકે છે, કરી જ શકે છે, પોસિબલ જ છે. तो क्लियर. तो 0.98 इंटू 0.92. सो 98 इंटू 92 डिवाइड बाई 100. अभी इसका तो मल्टीप्लीकेशन आपको कैलकुलेटर में करना पड़ेगा, लेकिन मैं आंसर मल्टीप्लीकेशन 98 इंटू 92 9 9 81 and 9 0, लेकिन थोड़ा बड़ा ही आएगा. डी ऑप्शन ही देख रहा है. कर लो एक बार, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. 98 इंटू 92, क्योंकि ऑब्वियसली 9 9 81 है, 8000 से ऊपर ही होगा. 8000 से ऊपर एक ही नंबर है 9000. हाँ ओके चलो. प्रोबेबिलिटी का मास्टर स्ट्रोक. कोई भी स्टूडेंट्स, कितने भी स्टूडेंट्स हो, उन लोगों को मैथ्स के सम्स दो, लेकिन कोई मिनिमम एक बंदा या एटलीस्ट 1 बंदा सॉल्व कर पावे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. मल्टीप्लिकेशन रूल, उसका कंसेप्ट ही ये है. जितने भी स्टूडेंट्स हो वो सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा मान लो.
કોઈ સ્ટુડન્ટ સોલ્વ નહીં કરી શકતા, તો એને 1 માઇનસ સબટ્રેક્ટ કરી દો, સો યુ વિલ ગેટ એટલીસ્ટ વન વિલ બી સોલ્વ. સો પી ઓફ એ ડેશ, આ રૂલ છે, યાદ રાખો. હવે આના બદલે કાલે उठीने कोई भी मूकी सके 1/3 1/3 1/3 तो दिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी रख सकते हैं, 3 अलग अलग भी नंबर दे सकते हैं. सो 1 माइनस 8/27, सो 8/27, तो 27 माइनस 8 यानी 19/27 इज द आंसर. बेस्ट सम है प्रोबेबिलिटी नो. देयर आर 2 थेरापीज B1 एंड B2. ये थेरापी वाला तो कुछ अभी बेस थियरम है, हमें बोलवा नहीं. Available for curing the patient suffering from certain disease. The patient can choose any of the 2 therapies. Selected B1 of the recovery is 7/8, and if he select therapy B2, the probability of recovery is 9/10. The patient is cured with the probability that he has selected therapy B2. Obviously base theorem ही है. હવે base theorem લગભગ બોર્ડ્સમાં 2 માર્ક્સ 1 માર્ક્સનો થઈ જાય એટલે બહુ નથી પૂછતા, પણ એવું છે નહીં, ઇઝી સમ છે તો પૂછી શકે છે. P of B1 पहले थेरापी लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 1/2. फॉर्मूला नहीं मुकवानी ला. देख अभी मैंने थेरापी B1 लिया और क्योरिंग कर रहा हूँ, यानी A/B1. जो इवेंट है ना अपनी इवेंट क्या होगी? रिकवरीज, यानी पेशेंट रिकवर हो रहा है वो हमारी इवेंट है. पेशेंट रिकवर हो रहा है वो हमारी इवेंट A है. तो A/B1 इज 7/8 एंड A/B2 इज 9/10. अभी उसने क्या बोला है भाई? थियरी B2 के साथ, सॉरी थियरी से नहीं करवानी है, थेरापी कौन से करनी है? B2. सो P ऑफ AB2 P ऑफ B1, ये फॉर्मूला रखो और हो गया. ओके. 1/2 इंटू 7/8, 1/2 इंटू 9/10, 1/2 कॉमन निकालो नीचे. सो 7/8 प्लस 9/80, 70 प्लस 72, यस 142/80, यानी 71/80. नीचे 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 नीचे, अभी तो सिर्फ नीचे काम आया है, 71/80 नीचे आया. तो ऊपर 1/2 इंटू थेरापी B2 है ना, 1/2 इंटू 9/10, 24 जा 36/71, 9 4 जा 36/71. डन. 33 number no sum. 2 cards are drawn randomly from the well shuffled pack of 52 cards. First card is replaced before with replacement. चलो with replacement यानी इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि आपने पहली बार जो कार्ड निकाला वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है. तो दोनों कार्ड S कार्ड है, तो पहले में कितना आएगा? 4C1/52C1. दूसरी बार भी वो आ गया 4C1/52C1. अगर ऐसा होता विदाउट रिप्लेसमेंट तो सेकेंड टाइम 3C1/51C1, तो 1/13 इंटू 1/13, आंसर इज 1/69. चलो रे. 2 aeroplanes of 1 and 2 bomb a target in succession. Okay, फाइटर प्लेन से बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 स्कोरिंग द हिट करेक्टली आर 0.3 and 0.2. चलो ओके. द सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट मिस इज द टारगेट. बराबर है. पहलो बीजो क्यारे मारे जा रहे फर्स्ट मिस था, तो प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय द सेकेंड प्लेन, तो ए का मिस हुआ ही होगा भाई. देखो दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, कोई किसी पे डिपेंड तो नहीं है. लेकिन अगर पहले वाला का मिस हो गया, मिस यानी क्या? 0.3 था, उसकी जगह पे 0.7 लिख लो. दूसरे का तो मार ही रहा है वो 0.2, यानी 0.14. डन. सिंपल. 0.14 જ આવશે. પહેલો વાળો મિસ થાય તો જ બીજો ટાર્ગેટ કરે ને. સિમ્પલ સમ છે. लेकिन पढ़ो एक बार, क्या दिया है वो पढ़ लो. 2 cards are drawn in succession without replacement. अरे बाप रे,
विदाउट रिप्लेसमेंट यानी हमारा डिपेंडेंट इवेंट, याद रखो, विथ रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट इवेंट। स्टैंडर्ड वेल शफल पैक 52 कार्ड, द फर्स्ट कार्ड इज ऑफ द रेड कलर। चलो फर्स्ट कार्ड लिया मैंने, डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो फर्स्ट कार्ड क्या है, रेड कलर, या रेड कलर यानी 26C1। कलर पूछा है भाई, क्या पूछा है, कलर, रेड, डायमंड या हार्ट नहीं है, कोई भी हो सकता है, यानी 26 कार्ड। હવે બીજો કાર્ડ છે, સો બીજો કાર્ડ પહેલા કાર્ડ ઉપર ડિપેન્ડ જ હોય ને બેટા। सो सेकेंड कार्ड इज ऑफ ब्लैक कलर। अभी ब्लैक कलर तो पहली बार ले रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम नीचे करेगा 51C1, सो 26/51। तो अभी क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, કેમ કે આમ તો મલ્ટીપ્લિકેશન रूल જ છે, या तो डिपेंडेंट इवेंट या तो इंडिपेंडेंट इवेंट, होगा तो मल्टीप्लिकेशन रूल ही। 13/51 कैलकुलेटर करके देख लो, 13/51 कितना होता है, आई थिंक 13, 17 3s एंड 3 करके देख लो, 25 समथिंग, यस 2549 वही होगा, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो रहा है 65 वाला, तो समथिंग डी ऑप्शन 13/51 डन। चलो, बैलेंस डाई इज रोल्ड इफ आउटकम इज एन ऑड नंबर, इफ आवे हो, इफ यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। तो बेस इवेंट कौन है, मेन इवेंट कौन है, प्राइम। सो पी ऑफ बी ऑड नंबर आ रहेला है, तो 3/6। अभी मेरे को ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए तो જોઈતો જ નથી, प्राइम પણ હોય ને ઓડ હોય, એવું કોણ હોય ભાઈ, 3, 1 तो नहीं आएगा, एंड 5। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2/6। सो हमें क्या चाहिए क्वेश्चंस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बार बी, सो 1/3/1/2, सो 2/3 इज द ऑप्शन, सही। 6-phase die is so biased means 1/2 1/2 1/6 1/6 1/6 જ આવે એવું જરૂરી નથી, એને biased કહેવાય, ઓકે। that is twice likely to show an even number as an odd number when the thrown, क्या इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर कोई इवन नंबर आता है तो वो ऑड नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी आती है उससे डबल टाइम्स हो रहा है, ऐसा। इफ इट इज थ्रोन ट्वाइस, कौन, 2 बार, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इवन, सम ऑफ 2 नंबर्स इज इवन। अब एक ध्यान थी समझो तमें, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कोई भी हो नंबर्स, तो या तो इवन आएंगे या तो ऑड आएंगे, टोटल तो प्रोबेबिलिटी 1 જ થાય ને, क्यों कोई भी करो, तो कोई भी તમે કરશો, P of 2 times odd, सिंपल। सो P of odd क्या आएगा बेटा, 1/3। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/3, तो ऑब्वियसली P of इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 2/3, डबल જ થશે, એવું તો કીધું છે। હવે એને એવું કીધું છે કે ધ પ્રોબેबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स इज इवन। अभी इवन क्या रहा है, 2 इवन आवे तो पण બંનેનો સમેશન इवन જ થાય। मुझे इवन नंबर चाहिए, एक डाई 1 है और दूसरी डाई 2 है, जो અહીંયા इवन नंबर आवे तो અહીંયા પણ इवन જ આવવો જોઈએ, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 6 + 2 8। जो ऑड नंबर आवे तो पण અહીંયા ऑड नंबर જોઈએ, ये समझ में आया। आ तो कंसेप्ट है यार, यानी तो कथा है आखी। देख, दोनों इवन चाहिए या तो दोनों ऑड चाहिए, क्योंकि 1 + 3 करो 4, 3 + 3 करो 6, 5 + 3 करो 8, 2 इवन જોઈએ या 2 ऑड જોઈએ, तो पती गયું। तो प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स, यानी 2 इवन चाहिए, 2 इवन, ठीक है, 2 इवन या तो फिर 2 ऑड, ओके। अभी अब 6-phase dice is so biased it is likely to low, तो चलो, तो इवन 2 नंबर हो यानी प्रोबेबिलिटी 2/3 × 2/3, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, या तो फिर 1/3 1/3,
सही है। सो 4/9 प्लस 1/9, सो 5/9 इज द आंसर। सिंपल है यार। The probabilities of new purchase television and refrigerator will be working 10 years hence, 7 by something and 7 by 10. The probability that both will not be working 10 years hence. तो क्या यार, दोनों करेंगे तो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। सो आई इंडिपेंडेंट इवेंट्स अच्छे नहीं कर रहे ऐसा बोला है, विल नॉट बी वर्किंग। अगर विल वर्किंग बोले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सो 1 - 7/15 इंटू 1 - 7/10, so 8/15 into 3/10, 3 5s are okay. So 4 2s are 5 into 5 2s are 4/25 is the answer. Okay, ऑप्शंस में नहीं है भाई, 4/25 ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन 24/150 तो ऑप्शन में है। ऑप्शन बदल दिया, सिंप्लीफाइड आंसर नहीं है, इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 4 6 24, 25 6 150 છે ને ગજબ માણસો। એટલે મને એવું લાગે છે કે આ છે ને સિમ્પ્લિફાઈ નહીં કરવાનું, 150 ઉપર 24 આ ગયા સીધા આન્સર। A class consists of 80 students, 25 of them are girls, 55 of boys, 10 of them are rich and remaining are poor. अरे बाप रे। 20 of them are fair complexion. Okay. What is the probability that the सिलेंगे फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच एंड गर्ल, सब कुछ लेना है। फेयर भी चाहिए, कॉम्प्लेक्शन फेयर कॉम्प्लेक्शन भी चाहिए, रिच भी चाहिए और वो गर्ल भी होनी चाहिए। इतना सारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, किसको मिलती है भाई ऐसी। चलो 25 ऑफ देम आर गर्ल्स, एक तो 80 में से रिड्यूस हो गई 25 गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ 55, ठीक है। चलो हमें बॉयज़ का कुछ काम ही नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। बॉयज़ का कुछ काम ही कहाँ है। 10 ऑफ देम आर रिच एंड रिमेनिंग आर पुअर, ओके। 25 ऑफ देम आर गर्ल। अभी ये 80 में से ही ऐसा है कि 10 ऑफ देम आर रिच एंड रिमेनिंग आर पुअर, 20 ऑफ देम आर फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल, 20 ऑफ देम आर फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो अभी वो गर्ल भी होनी चाहिए क्या, पीछे से पकड़ो, पहले तो वो गर्ल होनी चाहिए, यानी 25/80। फिर साथ साथ वो फेयर कॉम्प्लेक्शन भी होनी चाहिए, नहीं रिच भी होनी चाहिए, यानी 10/80। और वो रिच भी फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये रिच वाला था सॉरी, एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन इज 20। आटलू જોઈએ भाई। तो 0 0 0 0 2 4s 25/80, यानी 5 into 18 5s, oh sorry 16 5s, sorry 16 5s, 8 4s 32, so 16 into 32, okay। 320 plus 512, that is total हो जाएगा 5/512 is the answer, done। चलो, a coin is tossed 3 times in succession, एक के बाद एक के बाद एक, total outcomes 8, okay हाँ, total outcomes 8। event is that at least 2 heads, क्या एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी एच एच टी एच टी एच टी एच एच, और तीनों के 3 भी आ सकते हैं भाई। चलो एव इज द इवेंट दैट फर्स्ट थ्रो इज द हेड, फर्स्ट थ्रो इज द हेड, 4 ही आएंगे। सो E/F ऐसा, तो इसका तो हो गया, नीचे वाले का तो 4/8। ऊपर क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, इंटरसेक्शन, ये बस 3 ही आएगा, सो 3/8, सो आंसर इज 3/4, डन। प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, अरे फिर से वही वाला सम है भाई, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अभी प्रॉब्लम सॉल्व कोई भी करे,
एक बंदा करे, दो बंदे करे या तीन बंदा करे, वो किए थे हम वही वाला सम है भाई, पी ऑफ ए डैश बी डैश एंड सी डैश, एटलीस्ट वन को या सॉल्व को बने सही बनना है। 1 माइनस 1/5 का उल्टा 4/5, 1/6 का उल्टा 5/6, 1/7 का उल्टा 6/7, so 1 minus 4/7 that is 3/7, yes। चलो, a purse contains 6 silver coins, 3 gold coins, another purse contains 4 silver coins। देख, पर्स 1 सिल्वर गोल्ड, पर्स 2, पहले तो टेबल बनाओ, थोड़ा टाइम लागे बट इजीली થઈ જાય। 6 सिल्वर कॉइन, 3 गोल्ड कॉइन, 4 सिल्वर कॉइन, 5 गोल्ड कॉइन, यानी इसके अंदर 10 9 है, इसके अंदर भी 9 है। A purse is selected at a random and coin drawn from it. What is the probability that it is silver coin? सिर्फ इतना पूछा है, कहाँ से लेना है वो नहीं पूछा है, यानी बेस थ्योरम। लेकिन बेस थ्योरम में भी टोटल बेस थ्योरम नहीं है मेरे भाई, सिर्फ P of B1 P of A बार B1 इतना ही पूछा है। कहाँ से लेना है वो कहाँ पूछा है उसने भाई, इतना ही पूछा है। देख, B1 यानी पर्स 1 उठाने की प्रोबेबिलिटी, वो तो 1/2। अभी मुझे चाहिए क्या, सिल्वर कॉइन, तो पर्स में से सिल्वर कॉइन कितने हैं, 6/9। चलो, पर्स 2 1/2, अभी पर्स 2 में से सिल्वर कॉइन निकालना है, 4/9, सो 9 2 ज़ा 18, एलसीएम फिक्स, 6 + 4 10, 5 और 9, सो 5/9 ઇઝ ધી આન્સર। હવે તમને એવું કીધું है कि सिल्वर कॉइन्स मारे बैग 2 માંથી, पर्स 2 માંથી જોઈએ છે, तो उसके ऊपर फिर वो वाली फेवरेबल आउटकम्स वाली प्रोबेबिलिटी डाल देना। A bag contains 6 white and 9 black balls, black 4 balls, okay, balls, comma, 4 balls are drawn at a time. Find the probability that for the first draw to select 4 white and second draw to select 4 black. Okay, ठीक है, 6 white है एंड 9 ब्लैक बॉल है, यानी टोटल 15 है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर द फर्स्ट ड्रॉ टू सिलेक्ट 4 वाइट। हाँ, तो 4 वाइट निकालने हैं, सो 6C4 अपॉन 15C4 एंड सेकेंड ड्रॉ टू सिलेक्ट 4 ब्लैक बॉल्स। अभी जो सेकेंड टाइम आप निकालोगे तो उसमें से ब्लैक बॉल तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये 4 बॉल तो ख़त्म हो गए ना उसके, 11C4 हो जाएंगे ना, 4 पहले से ही निकाल ले। चलो, 6C4 6 5 4 3 कॉम्बिनेशन आना चाहिए, स्टैंडर्ड 11। हाँ, कैलकुलेशन लंबा है, सम इजी है तो कैलकुलेशन लंबा है, क्या करें सर, अभी करना तो पड़ेगा ही। 4 3 2 1 11 10 9 8 4 3 2 1 घट 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 घट। चलो, 9 8 9 8, कलर अलग कर दो, ओके। 5 3 ज़ा 15, डन। और कुछ, चलो अभी 24 12 2 ज़ा, अभी बचा क्या, देख 2 बचा, इसमें 2 बचा, यहाँ से 7 અને 6 बचा। चलो, नीचे क्या बचा, 14 13 11 एंड 10, આટલું બચ્યું છે। अभी ये 7 2 ज़ा 14 भी गया, 6 यानी 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा, सो 55 इंटू 13, सो 55 इंटू 13 कर लो, सिंपल। 6 तो ऑप्शन एक ही है, नहीं 3 वाला ऑप्शन एक ही है, चलो कर लेते। 550 एक ही ऑप्शन है, बोला तो सही मैं, 715 इज द आंसर। डन, ओके, ऐसा ही करना पड़ेगा।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, मेरे को दोनों में चाहिए, तो पहले मैं इवन प्राइम नंबर, अभी इवन प्राइम कौन सा है भाई, एक ही है, तो वो एक ही बार आएगा, डी ऑप्शन 1/36 एक ही बार आएगा। इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो दोनों में आना चाहिए, तो एक ही बार आएगा, दूसरी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। ओके चलो, अंशुमन स्पीक्स ट्रूथ 90% केसेस, शाश्वत स्पीक्स, ये तो एकदम इजी है, दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.90। अभी कॉन्ट्राडिक्ट वाला सम ऐसा टेक्स्ट बुक में था भाई, तो जब कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो एक सही बोलता है तो दूसरा सही नहीं बोलता है, या तो पहले वाला दूसरा वाला सही बोलता है तो पहले वाला नहीं बोलता है, ऐसा होता है भाई। सो 0.90 इंटू 0.40, 0.60 इंटू 0.10, ठीक है, सही में। सो 36 1 2 6/100, सो 42/100 यानी 42% केस इसमें हो गया, सिंपल। 3 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, यानी 8 आउटकम्स, इफ हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट कॉइन, इफ આવ્યો એટલે कंडीशन। सो बेज इवेंट થઈ ગઈ આપણી, क्या, इफ हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट कॉइन, सो H H T H H H H T H H T T, यानी P of B 4/8। The probability of getting heads on the remaining coins, तो रिमेनिंग कॉइन्स पर हेड आएगा, ऐसी एक ही पॉसिबिलिटी है, सो A इंटरसेक्शन B एक ही आएगा 1/8, सो आंसर इज 1/4, ए ऑप्शन इज द आंसर, सिंपल। गेटिंग हेड्स ऑन रिमेनिंग कॉइन्स, पहले कॉइन पर तो हेड, दूसरे दो कॉइन्स में भी हेड, तो तीनों मिला के हेड हेड हेड, तो एक ही ऑप्शन है 1/8 एंड 4/8, सो क्लियर, बराबर है, 1/4 ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि देख हमारा A/B, सो 1/8 अपॉन 4/8, सो आंसर इज 1/4, सही है। A box X contains 3 white, 2 black balls. Box Y contains 4 white, 2 black balls. A box is selected at random and a ball is drawn from it. What is the probability that the ball drawn is black? अभी बॉल तो ड्रॉन ब्लैक, यानी कि ये सिंपल ही है, पूरा का पूरा बेस थ्योरम नहीं उठाना है, बराबर છે। તમે પહેલા બોક્સ ઉઠાવો છો તો બોક્સ की प्रोबेबिलिटी क्या, बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या, X कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 बॉल, X एंड Y, तो उसकी तो 1/2 जावे। હવે તમારે ए इवेंट दैट इज योर टेकिंग द ब्लैक बॉल, अभी ब्लैक बॉल फर्स्ट बॉक्स में से उठाना है, सो 2C1 अपॉन 5C1, और दूसरे में कितने हैं ब्लैक बॉल से, 2 ही है, लेकिन टोटल 6 है, यस, सो 2 कैंसल 1/5, इधर ऑल्सो 2 कैंसल 1/6, सो 11/30 इज दी आंसर। ये चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। अ पैक ऑफ कार्ड्स कंटेन 4 एसेस, 4 किंग्स, 4 क्वीन, 4 जैक्स, यानी कि टोटल वी हैव 12 कार्ड्स। फेस कार्ड्स नहीं, फेस कार्ड्स नहीं है क्योंकि ये फेस में नहीं आता है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, सॉरी 12 कार्ड्स नहीं हो रहा है, सॉरी भाइयों और बहनों, 16 कार्ड्स, 4 टाइप्स के हैं, मैंने फेस कार्ड मान के ले लिया, सो 12 कार्ड्स। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ द पैक, ओके, फ्रॉम द पैक, ये 2 बार लिख लिया है, विदाउट रिप्लेसमेंट। सो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या आता है भाई, डिपेंडेंट इवेंट, ओके, ये जाओ से द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एसिस, यानी कि मिनिमम एक हमारा एस होना चाहिए, यानी कि एक को होवो જોઈએ આપણો, ओके। કેટલા કાર્ડ લેવાના છે, માની લો કે પહેલી ઇવેન્ટ તમે એક કો લો છો, ફર્સ્ટ
इज एन एस। थोड़े शांति से करूँगा, आपको समझ में आए इसलिए। तो पहला प्रोबेबिलिटी शू था, समझो। तो टोटल वी हैव 4 डिवाइड बाय 16 C1, सो 4/16 यानी कि 1/4। હવે એટલીસ્ટ 1 કીધું છે એટલે એક એસ હોય યા બીજો પણ એસ ના હોય કે હોઈ બી શકે, તો આપણે નહીં છે એવો કેસ લઈએ. સેકન્ડ ઇઝ નોટ એન એસ, ધ્યાનથી સમજો. ओके, सो P ऑफ B, लेकिन ऑब्लिक करूंगा क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट है. सो एक लेवाई गयो है विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक लेवाई गयो है. सॉरी 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 सॉरी, नो 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 नो, एस नहीं है भाई. सो बाकी के कितने हैं भाई? 12C1 अपॉन 15C1. केम 15? सिंपल यार, 4 3 5 3 केम 15? अरे यार एक कार्ड आगे तमे लई लीधो छे. सो केस 1 का आंसर क्या हुआ? केस 1 का आंसर पहले में एस, दूसरे में एस नहीं. यस, क्लियर? इट्स ऑल क्लियर और नॉट? आ समझाई गયું? હવે હું ઇવેન્ટ નહીં લખું, કેસીસ બનાવું છું. चलो मान लो कि केस 2 ले रहा हूं मैं, केस 2 ले रहा हूं. सो पहले में एस नहीं आ रहा है, मीन्स के पहलो एक वगरनो है, तो 12C1 अपॉन 16C1 एंड दूसरे में एस लेना है, यानी कि 4C1 अपॉन 15C1. सेम 12/16 इंटू 4/15, सेम टू सेम ज आवशे भाई, 1/5 ज आवशे. यस, ओके, डन. केस 3, अभी केस 3 समझो, दोनों एस ले लो. एटलीस्ट 1 है એટલે मिनिमम एक या तो दोनों, तो दोनों एस लेते हैं. तो 4C1 अपॉन 16C1, 3C1 अपॉन 15C1, टोटल 16 कार्ड्स है ना. सो 4 3 12, 16 अपॉन 15. ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्ट करो. चलो 4/16 यानी 1/4, 3/15 यानी 1/5, सो 1/20. तो आ बधाનું टोटल मारी दो. 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/20 यानी 2/5 प्लस 1/20, 20 LCM. यस, सो 8 प्लस 1 9/20 ऑप्शन है. यस, इसको दूसरी टेक्निक से करते हैं, एकदम शॉर्टकट टेक्निक. देखो ये तो थोड़ी बड़ी है. मान लो कि मैं एक भी एस नहीं ले रहा हूं, एक पण आपणो ड्रॉ एस वगरनो है, एक पण ड्रॉ में आपणे एस नहीं लेता. तो फर्स्ट ड्रॉ में क्या करोगे? एस नहीं आ रहा है, सो 12C1 अपॉन 16C1, दूसरे में 11C1 अपॉन 15C1. इज इट अंडरस्टूड और नॉट? समझाय छे? આપણે એકો લેવો જ નથી, માની લો એક પણ ડ્રોમાં નથી લેવો, તો પહેલા ડ્રોમાં તમને 12 માંથી એક લઈ લો, तो 12C1 अपॉन 16C1, 11C1. सो 12 इंटू 11 अपॉन 16 इंटू 15. ओके, 4 3 5 3 4 4, 11/20. सो उसको 1 माइनस कर दो, यू विल गेट 9/20. सट्टाक दिन पूरू विद इन 1 मिनट. इतना लंबा कैलकुलेशन काहे करे भाई? कल को मान लो कि 3 कार्ड ले लिए, तो आप कितने केस बनाओगे? कितना केस बनाओ सो? तो एना करता बेटर है नाइदर ए नॉर बी करके उसका 1 माइनस कर दो. ठीक है, डन, मजा आएगी. चलो, सो नेक्स्ट ENF आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, ये वाला फॉर्मूला में जाना चाहिए था लेकिन इसमें आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड इफ G denotes the event that only one of ENF occur. सो हाँ, ये फॉर्मूला में जाना चाहिए था बेटा, लेकिन थोड़ी गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, सो इसकी फॉर्मूला क्या? E इंटू इंडिपेंडेंट इवेंट्स से इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो E माइनस E इंटरसेक्शन F. यस, प्लस F माइनस F इंटरसेक्शन E. सो 2 टाइम्स हो गया P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस 2 टाइम्स E इंटरसेक्शन F. હવે इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P ऑफ E इंटू P ऑफ F. सो आई थिंक
एक ही ऑप्शन है भाई 2 टाइम्स वाला, तो बाकी तो 1 1 टाइम्स है। ये दोनों तो वैसे भी नहीं आ सकते, इसमें प्लस है। चलो, अब बैग कंटेन्स 5 ब्राउन सॉक्स एंड 4 वाइट सॉक्स। ओके, टोटल 9 सॉक्स है हमारे पास स्टॉक में। अ मैन सिलेक्ट 2 सॉक्स फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। वर्ड्स ने તમારે हाईलाइट करो डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, दैट द सिलेक्टेड सॉक्स विल बी द सेम कलर। अब एक कलर पूछा है, स्पेसिफिक नहीं बोल्या कि ब्राउन है कि व्हाइट है, तो આપણે તો બંને કેસ લેવા પડે। માની લો કે કેસ 1 બ્રાઉન કલર્સ के दोनों सॉक्स निकालते हैं, तो હવે બધી ઇવેન્ટ્સને બધું લખવાની જરૂર નથી, સિમ્પલ। ફર્સ્ટ કેસમાં શું નીકળે, ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે ડ્રો કરશો યા ફર્સ્ટ ટાઈમ સિલેક્ટ કરશો તો બ્રાઉન સॉक्स કેટલા છે 5C1/9C1। સેકન્ડ ટાઈમ કરો તો એક ડાઉન થઈ ગયો ને, સો 4C1/8C1। सो 4 2 सो 5/18 पहला केस। હવે બંને માની લો કે વ્હાઇટ સોક્સ જ લેવા છે, તો ફર્સ્ટ કેસમાં શું કરો બેટા તમે 4C1/9C1। હવે એક ડાઉન થઈ ગયો ને, એક સોક્સ લેવાઈ ગયો, યસ। ચાલો, सो 4 2 3 3 सो 1/6। इन दोनों का एडिशन कर लो, 5/18 प्लस 1/6 डन। सो 5 प्लस 3 8/18, 8 यानी 4 2 दैट इज 9 2। सो आंसर इज 4/9। डन हो गया। लॉजिक लगाड़ो, एने सेम कलर कीधु छे, या तो बन्ने ब्राउन या तो बन्ने व्हाइट। कितने कार्ड्स 2 सॉक्स लेने। चलो फटाफट। अब हस्बैंड एंड वाइफ, अरे यार हस्बैंड वाइफ वाला तो सम्मा कहीं ज नहीं। इंटरव्यू फॉर द 2 वैकेंसीज, सेम प्रॉबिलिटी दैट हस्बैंड सिलेक्शन इज ओके। हस्बैंड का सिलेक्शन हो रहा है P(H) एंड वाइफ का सिलेक्शन हो रहा है P(W). सो व्हाट इज द प्रॉबिलिटी, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। अभी एटलीस्ट 1 आया तो 3 केस निकलेंगे, या तो वाइफ हस्बैंड हो रहा है तो वाइफ नहीं हो रही है, या तो हस्बैंड हो रहा है पहले केस पहला जो हस्बैंड थाय तो वाइफ ना थाय, वाइफ थाय तो हस्बैंड ना थाय, बन्ने पण थई शके। तो आटलू बधु लांबू 3 केस कौन करे, ना वाइफ हो रही है ना हस्बैंड हो रहा है, खत्म। सो इंटरव्यू तो भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स थाय ने यार, सिंपल। सो 1/7 का 6/7, रिवर्स लो कॉम्प्लीमेंट्री, 1/5 नु 4/5। सो 24/35, लेकिन उसने क्या पूछा है भाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम। सो 1 - 25/35, सो 11/35। बी ऑप्शन इज द आंसर। 3 केस करવો હોય તો કરો, બટ ટાઈમ જાય ને યાર, આપણે જોડે ટાઈમ ક્યાં છે અત્યારે, એક્ઝામની વાત કરું છું। 100 memory cards of mobile phones, 10 cards have defect of type A, 5 cards of type B, 2 have defect of both types। यानी टाइप A के डिफेक्टिव पीस प्रोबेबिलिटी क्या हुआ 10/100, B टाइप के डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, क्योंकि ये कार्ड्स दिया है, प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है भाई, और दोनों है वो दोनों डिफेक्टिव है तो 2। जो वर्ड्स में लख्यू मार बेटा, जो तमें वाँचવું જ પડે તમારે। What is the probability that the card drawn is at a random that has no B type of defect under the condition that A has type F defect? Oh, कंडीशन है भाई, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नो है, नो बी टाइप ऑफ डिफेक्ट। बी टाइप डिफेक्ट दिया हुआ है, लेकिन उसने फाइंड किसना करा, अंडर द कंडीशन। ओ ये फाइंड करना है भाई, ફરીથી શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, ધેટ હેઝ નો બી ટાઈપ ઇફેક્ટ। બી ટાઈપ ઇફેક્ટ છે, એની પ્રોબેબિલિટી 5/100 છે, બટ નથી અંડર ધ કન્ડિશન ધેટ હેઝ એ ટાઈપ ઓફ ડિફેક્ટ। અરે બાપ રે। सो ये तो फॉर्मूला ही है, P of A इंटरसेक्शन B डैश। सो A माइनस A इंटरसेक्शन B। अरे यार एटले ज 11th स्टैंडर्ड फॉर्म्युला रिवाइज कराए बेटा, फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन एटले अलग कर दीधा है। सो चलो पुट करो 10/100 माइनस 2/100 अपॉन P of A 10/100, 100 LCM 8/10। सो 4 2s and 5 2s, 4/5 is the answer। डन।
A card is drawn from well shuffled pack of 52 cards. Event A has getting card of spade. Event B is getting card of A and B are. ओके देन यहाँ पे कॉमा होना चाहिए. चलो तो P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी का स्पेड कितने होते हैं भाई? सो 1/2. गेटिंग एन एस, एस कितने होता है भाई? एक ही कार्ड निकालना है. हाँ अ कार्ड यानी सिंगल कार्ड है. જોવાનું એકદમ શાંતિથી વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ એટલે જ મેં અલગ કર્યા. क्वेश्चंस 2 बार पढ़ लो. 2 कार्ड्स है, 1 कार्ड्स है. 26 क्यों किया भाई मैंने? कुछ गलती की, सॉरी. P ऑफ A 13C1 स्पेड 52C1 आएगा ना बाप. क्या यार सर जी इतना भी क्या कर रहे हो? चलो एक ज एस लेવાનો છે. सो 1/13. अभी क्या है, दोनों को इंडिपेंडेंट बोला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, एग्जॉस्टिव बोला है, डिपेंडेंट बोला है. चलो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी. अभी स्पेड हो और एस हो, एक ही कार्ड है वैसा. सो 1/52. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो रहा है. तो भाई इंडिपेंडेंट इवेंट इच है, इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन. फॉर्मूला याद करो. 2 अनबायस्ड डाइज आर थ्रोन. 2 डाइज यानी 36 आउटकम्स मिलेंगे. हाँ चलो दिमाग में रखो. द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेज ऑफ 2 डाइज इज 6. ओके इफ 6 अपीयर्स ऑन द, ओ सो दिस इज योर बेस इवेंट एंड दिस इज योर मेन इवेंट. इफ 6 अपीयर्स ऑन द फेज ऑफ फर्स्ट डाइज, सो बेस इवेंट क्या है भाई? 6 अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ फेज ऑफ फर्स्ट डाइज. तो 6/1, 6/2, 6/6 डन. सो 6/36. लेकिन हमको ए इंटरसेक्शन भी चाहिए. टोटल तो 1 ही आएगा, सॉरी टोटल सम 12 चाहिए. तो एक ही ऑप्शन है 6/6. तो पता ही क्यों भाई? P ऑफ A बार B ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे बेस इवेंट 6/36. सो आंसर इज 1/6. क्लियर? डन. चलो. A family of having 2 children, if word આવે એટલે conditional probability. If one of them child is a girl, okay, one of them child is a girl, so B event GB BG और GG. okay, तो P of B 3/8. बट द प्रोबेबिलिटी दैट अदर इज ऑल्सो गर्ल, तो ऐसा तो इंटरसेक्शन एक ही आएगा भाई, जी जी. सो P ऑफ A बार B, इसका 1/4, इसका 3/, टू चिल्ड्रन है भाई. सॉरी क्या किया मैंने? 2 चिल्ड्रन ही है. सो 3/4. सो आंसर इज 1/3. हो गया. चलो भाई. A dice is thrown, the event E is the number appearing on the multiple of 3. चलो एक ही डाइस है यानी 3 के मल्टीपल 3 6. तो P ऑफ E का प्रोबेबिलिटी 2/6. F is the event number appearing is even. तो इवन नंबर कौन से होते हैं भाई? 2 4 and 6. सो 3/6. सो E and F आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है भाई? चलो E इंटरसेक्शन F. હવે નંબર 3 ના મલ્ટિપલમાં भी છે અને ઇવન भी છે, एक ही आएगा भाई. ये क्या आएगा? 1/3. ये क्या आएगा? 1/2. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो रहा है यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट से. बट आ चैप्टर में इंडिपेंडेंट इवेंट જ મેઇન કન્સેપ્ટ છે. તો પછી એના જ પૂછે ને યાર, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों पूछे? 3 fair coins are tossed यानी 8 आउटकम्स. इफ वन ऑफ देम शोज द टेल यानी कि बेस इवेंट T H H T T T, then the probability that all the 3 coins, 3 coins है भाई, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ हर बार? चलो. B event, base event, one of them shows the tail, then all the 3 coins shows the tail. तो क्या होगा? one of them मिनिमम एक भी ले सकते हैं. सो एच नहीं आना चाहिए, उसके सिवा सारे है ना. सारे के सारे क्यों लिखे भाई? एच नहीं आना चाहिए.
हो गया ना 7/8 और A इंटरसेक्शन B T यस सो P of A bar B yes so 1/8 upon 7/8 so answer is 1/7 khatam done. The probability that A speaks truth is 4/5 okay while this probability for B is 5/6 okay chalo. The probability that they contradict each other, contradict में तो कुछ भी नहीं है भाई, A इंटरसेक्शन B डैश या B इंटरसेक्शन A डैश, अगर कॉन्ट्राडिक्ट आवे सो मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि दोनों जो बोलेंगे वो तो इंडिपेंडेंटली बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्सનો मीनिंग તમને આગળ કહી દીધો બહુ બધી વાર આવ્યું. સો P of A into P of B dash 4/5 into 1/6 और 1/5 into 5/6 का है, अरे इसका रिप्लेस करो A डैश, सो दैट इज 1/5 P of B dash that is 1/6 ओके. सो 4/30 प्लस 5/30 यानी 9/30, 9/30 यानी कि 3 3s are 10 3s are, सो आंसर इज 3/10. चलो रे चलो. The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled. सिंपल है ये तो, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई. तो प्राइम नंबर कितने हैं 2 3 एंड 5. ठीक है. अभी पेयर ऑफ डाइस वो हमारा परम्यूटेशन कंसेप्ट, बॉक्स कंसेप्ट, ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है. सो इसमें भी 3 ऑप्शन, इसमें भी 3 ऑप्शन, टोटल 9 ऑप्शंस. क्यों? रिपीटेशन अलाउड है ना. 2 2 પણ આવી શકે, 3 3 પણ આવી શકે, 5 5 પણ આવી શકે, 2 3 3 2 3 2 5 3. તો બધું જ ક્યાં હવે 36 માંથી તમે એક્સટ્રેક્ટ કરશો, બરાબર છે. સો ઇવન ઇવન પ્રાઇમ નંબર ઓન ઈચ ડાય. चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई. इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम तो भाई एक ही है 2, और ईच डाई यानी ऑन ईच डाई तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है. हो गया, खत्म, कुछ है ही नहीं भाई इसमें तो. चलो, probability that A speaks truth 4/5. A coin is tossed. Reports that head appears. The probability that actually there was a head is. अभी एक ऐसा टेक्स्ट बुक में सम था, ये तो देखो टेक्स्ट बुक का ही MCQ, आई थिंक ये टेक्स्ट बुक का ही MCQ है, लेकिन उससे हिसाब से भी टेक्स्ट बुक में ही MCQ. एक समझो एक वस्तु કે જો તમે સાચું બોલો છો તો એનો મીનિંગ કે સાચું પડવું જ જોઈએ. यस, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ एंड कॉइन इज टॉस्ड, तो साचू पड़વું જોઈએ, यानी कि हेड मिलना ही चाहिए. अगर आप सच बोल रहे हो तो हेड मिलना ही चाहिए. जो તમે સાચું બોલો છો તો તમને સાચું આવવું જોઈએ. હવે તમે માની લો ખોટું બોલો છો ને ખોટું જ આવે એવું માની લો. માની લો કે ટેલ આવે છે તો ટેલની પ્રોબેबिलिटी બી 1/2, પણ તમે એ ટાઈમે ખોટું બોલો છો. સો આમ તો સાચું જ થયું. સો 1/5 कि नहीं, 1/5 रेडी. सो 4/10 प्लस 1/10 5/10 1/2 आंसर લખીને આવતા નહીં ભાઈ. ઓકે, હજી બાકી છે एक्चुअली देयर वॉज अ हेड. હવે हेड તો હતો જ. सो 4/5 into 1/2 1/2. सो आंसर इज 4/5. ओके गाइस, so finally all we have done word problems of probability. hope आपको बहुत ही मजा आया होगा અને બેસ્ટ ઓફ લક કે હવે આગળ પછીના ચેપ્ટર્સ અને બધી પ્રિપેરેશન તમે બહુ જ સારી રીતે કરી શકો છો. તો મળીએ આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચર સાથે. ત્યાં સુધી બધાને બાય બાય, આવજો.